Good afternoon, sir. How are you? Fine, fine, sir. So what's up? What is going on? Work is going on, sir. We're practicing, Mm-hmm. and slowly, you're opening, sir. Right, right. I have also started coming office, though I'm alone at office, but Khan Latif Khan building, no, sir. right, right, sir, right, sir. That's first floor. Yeah, first floor, first floor. Did you get any chance to go through? I went through a few AD ad this thing, and how to create a page in Facebook and things. But Okay, I didn't publish. okay. Um, After this, I want to come and meet you. After that, Will publish. Okay, yeah. good, good, good. All right. So I think Mr. Adnan is there, and one more person is there. So, Mr. Adnan, had you practiced anything? Well, I did go through online, sir, and basically trying to improve on the writing skills because what I felt mainly writing is a big part here. You have to use catchy phrases, something which is interesting for the reader. So I was just reading, just surfing on the net for that. Okay. All right. Uh, That's the same thing for me also, sir. Content, uh, content writing. It should be impact, no, sir. It should not yeah, look. yeah. I'm like you get hardly 60 character to impress your audience. Yeah, yeah. Whether it's a Google search or a Google ad or even Facebook, I'm like creative is there, but at least what kind of messaging that we are putting up in the creative, that's also very important. Right. So of course, bottom line is whatever we do, if it is gaining the attention of people, Yeah. whatever we do, if we are able to grab the attention of the people, grab the attention of the audience, that then it make more sense rather than rather than floating here and there and doing some random things. Right. Great. My only humble request is don't stop it. You No, no. Yeah. keep on doing it, because once you stop it, then you will lose the enthusiasm, you will lose the momento, and then we know, I'm like, we are flooded with lot of information, so slowly and slowly uh, we will fade, and then these things. As a business head, we also should come to know how what is Yes, yes, this. that's Yeah. that's very much important. That's very Um, much important. Everything if we know, it should be better. Yes. So, Some are in, and some are actually creating fear. Like, Mr. Adnan, something. your voice is breaking. Your voice is breaking. I'm like, I feel it is the continuous problem that whenever you try to speak, I think your voice is not coming to us very clearly. Yeah, what I was trying to say is, I have noticed that the phrases which are being used online, few are offering incentives. Hey, we're giving some, Right. and few are like, if you're not clicking on this, missing out something. So there's a sense of fear that I will look on this. So by through, like we say, trying the people, and that is fine. Is that okay? That's what we, as an advertiser, as a communicator, we have to create a urgency why people should click on you. Either they are getting benefit, they are getting some offers, or they are getting some, or they get scary about if they will not click, they may lose something very important. So we have to create those impulse in the ad what we are creating, or the kind of text that we are writing. So yes, of course these things are mandatory, and these things has to be there as a copy of ad or copy of content. That's what we are creating.
and we have Ishrat with us. So Ishrat, did you tried something, or you went through the video? I understand that it's a I went through your video and I have no time to go through it, but okay. I will try, and I have some plan. I have to prepare myself because I'm an academician. I have to prepare what to write, what to load. So I just now I am not. I have not prepared anything what to load. So I have a lot of things, materials. So I have to plan it in a proper Right. way so that I can use it in a best possible way. Thank you very Great. much. Great. So I yes. have material, but it is not organized, and I have a very little time. I'm very much benefited with your video. Mhm. I like it. I have glimpses. Think I will try my best in the next possible time. That's okay. I'm like, only thing is like, say what happens, what I understand, it's I'm like prominent saying, for all of us, it's not the end, it's not the beginning, it's end of the beginning. It It's is really a beginning. end of the beginning. End of the beginning has already started. So end of the beginning means you are already on. And then now, even if you are sparing half an hour time or 1 hour time on alternate day or a weekly basis, 2-3 hours, I'm Yes, like, right. either in a full-fledged 2-3 hours in a weekends, or half an hour. So if you start doing it, then only you'll be able to, we all of us will be able to make progress, right? And then since today is I'm like fifth day of our session, and then I'm just trying to, we are here with 3 participants only as of now. I'm like, Mr. Adnan is there, Dr. Murli is there, and Dr. Ishrat is there, right? So we are there with very few participants today. Probably, I'm not very sure, either they might be joining or they will not be joining, not very sure. Anyways, so what I'm trying to see over here is like, we try to capture almost all segment what is there, and keeping that in mind only, I have recorded and put it on the YouTube. Now along with that, in addition to that, there are few technical aspect, that's what we have to cover as well, but that is related with the coding part of it, like analytics, how to understand the analytics and all these things. So probably, in case, as we faced on the first day of our session, when it goes little technical, when we were talking about keyword optimization or title tag, or where to insert h1 tag and all. So in case that is a scenario, then I can shoot a separate video and share that as well to you guys, one by one steps, because more than that, I don't think I'm left with any other thing, but I'll showcase how analytics actually look like, and then what are the benefits that we get once we have analytics in place. Now what do you mean by analytics? हम like, हम analytics कहते किसको हैं? Analytics ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हम Facebook पे प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हम LinkedIn पे प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे हैं, हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे हैं, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, उससे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, और हमें उससे कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस चैनल से आ रहे हैं, वो कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हमारा एनालिटिक्स इनकॉर्पोरेटेड होता है। यानी एक तरह से ये आपके पूरे कैंपेन का एक्सरे है कि आप या तो गूगल में एसईओ कर रहे हैं, या आप गूगल पे ऐड क्रिएट कर रहे हैं, या आप फेसबुक पे कर रहे हैं, या आप किसी और ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, या व्हाट्सएप कैंपेन कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी इफेक्टिवनेस क्या है? इसके लिए जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हमने वीडियो क्रिएट किया और मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया, तो मैं अपने YouTube चैनल का एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि ये वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो कैसे एनालिटिक्स फॉर्मेट में हमारे सामने वो निकल के आता है। आपके सामने ये एक मेरा YouTube का एक चैनल सामने आ रहा होगा, आप देखें ये एक, राइट? तो ये YouTube का चैनल है, और अगर आप इसको देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये लेफ्ट साइड में आपको व्यूज कमेंट्स ये दिख रहे हैं। अगर मैं एनालिटिक्स, इसी के अंदर एक लेफ्ट साइड में एक बार है एनालिटिक्स का, अगर मैं उस पे जाता हूं
तो ये मुझे बताता है कि लास्ट 28 दिनों में 28 डेज में कितने लोगों ने व्यू किया है और कितने घंटे का व्यू हुआ है और कितने नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। अगर मैं लाइफ टाइम, यानी चूंकि मैंने ये बहुत लंबे टाइम से इसको नहीं करना शुरू किया है, तो आप देखें टोटल 1.5 डेढ़ हजार व्यूज करीब करीब हुए हैं जो अलग अलग वीडियोस हमने अपलोड किया है। 70 आवर्स से ऊपर के आसपास वॉच टाइम है, यानी कंसोलिडेटेड है 1500 पीपल हैव वॉच्ड दीज वीडियोस। उसमें से वो तकरीबन किसी ने पूरा देखा होगा, कोई थोड़ा देखे होंगे, कोई ज्यादा देखे होंगे, तो वो सारी चीजें हैं। और टोटल 52 सब्सक्राइबर्स अभी तक यहाँ पे आए हैं। अगर हम और इसको डिटेल वे में अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमारे किस लेवल पे, हम सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, ये हमारे किस लेवल पे ये हमारा वीडियो काम कर रहा है। तो अगर हम रीच के ऊपर जाएं तो रीच हमें ये बताता है कि टोटल कितने लोगों तक, कितने लोगों के सामने ये वीडियो आया। यानी अगर आप ओवरव्यू देखें तो इतने लोगों ने देखा, 903 लोगों ने देखा, लेकिन कितने लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचा, तो 3000 से ऊपर लोगों तक मेरे वीडियो का इंप्रेशन सामने आया, यानी 8.3% जो है। और 3.3 के आसपास लोगों के सामने मेरा वीडियो आया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। कितने लोगों ने देखा? 8.3% पीपल हैव एक्चुअली उसको क्लिक किया है और उसको देखा है। तो ये, और उसमें से यूनिक कितने हैं, यानी टोटल व्यूज 903 है, लेकिन यूनिक कितने हैं? यूनिक 308 हैं। इसका मतलब बहुत सारे रिपीट विजिटर्स हैं, और हमें रिपीट विजिटर्स ही चाहिए जो हमारे चैनल पे आए और हमारे वीडियोस को देखें। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आता है ट्रैफिक सोर्सेस क्या है। ट्रैफिक सोर्सेस एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल ये है कि यूट्यूब से नहीं आए, किसी और प्लेटफॉर्म से आए हैं। वो 23% जो है वो यूट्यूब के चैनल पेज से आए हैं। कोई ब्राउज करके आए, कुछ सर्च कर रहे होंगे, कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे, वहां से आया होगा। किन्हीं को सजेस्टेड वीडियोस के अंदर आया होगा, बिकॉज दे माइट हैव चूजन डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी उन्होंने चुना होगा, तो इस वजह से उनको ये दिख के आया। अब आप जब थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए 41% ऑफ पीपल हैव वॉच्ड इट फ्रॉम व्हाट्सएप। तो मैंने जो वीडियो के लिंक्स व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए हैं, वहां से सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। उसी तरह से फेसबुक से आया है, फिर लिंक्डइन से आया है, व्हाट्सएप बिजनेस से आया है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं। यहाँ पे एक और आ रहा है डिजिटल सर्विसेज, तो डिजिटल सर्विसेज का वीडियो है, ठीक है। उसी तरह से प्रोपोर्शन ऑफ योर ट्रैफिक, ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन इन एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन। तो हमारा एक वीडियो है जो कि एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन करके, तो अगर लोगों ने सर्च किया होगा उस तरह से तो उनको हमारा वीडियो नजर आया होगा। उसी तरह से जो हमारे पॉपुलर वीडियोस हैं, जो प्रायोरिटी वाइज हैं, किसमें सबसे ज्यादा है, तो आपको ये पूरा का पूरा टारगेट और ट्रैफिक अप्रोच मिल जाता है कि कौन से वीडियो को कितना लोगों ने देखा, उसका इंप्रेशन क्या हुआ, क्या उसका क्लिक थ्रू रेट्स है, क्या व्यूज रहे, और कितने एवरेज ड्यूरेशन, यानी एक आदमी ने एवरेजली 42 सेकंड देखा है। वहीं पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स का जो वीडियो है हमारा, यानी हाउ दे कैन इंक्रीज एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इसका एवरेज व्यू टाइम ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा और देखेंगे आप तो कुछ में आपको 8.55 भी नजर आ रहा है। ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा फर्स्ट डे का जो सेशन था, उसके अंदर लोग भी ज्यादा थे, और उसके हिसाब से यहाँ पे 8.55 मिनट्स तक ये वॉच किया गया है। जबकि आप इसी के अंदर ब्राउज कर लें तो एक छोटा वीडियो है जो कि बहुत ही छोटा वीडियो है, और वो शायद 2 या 3 मिनट के आसपास का वीडियो है। यहाँ पे मैंने ये डाला है एक माइक्रो वेब एंड डिजिटल एजेंसीज, यानी एक आप बीती है, जैसे हमारी जैसी कंपनीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है और काफी लंबा ड्यूरेशन तक इस चीज को वॉच किया है। तो ये एनालिसिस आपको ये दिखाता है कि किस तरह का कंटेंट आपका इंगेजिंग कंटेंट है और किस तरह का कंटेंट आपका इंगेजिंग कंटेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से आप देखें कि एक और वीडियो है, एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन, ठीक है। हर कुछ लॉकडाउन में सब कुछ लॉकडाउन नहीं है, यू जस्ट नीड टू अनवाइंड योर माइंडसेट। एक हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था एंड दैट वाज अ गुड हिट, ठीक है। तो ये आप देखें तो इसका एवरेज ड्यूरेशन जो है, काफी लोगों ने इसको देखा है और क्लिक थ्रू रेट्स भी इसके काफी अच्छे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे क्रिएटिविटी को भी डिफाइन करता है और भी चीजों को डिफाइन करता है
कि हमें किस तरह का वीडियो और किस तरह की चीज हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम देखें तो ये ट्रैफिक सोर्स से है। दूसरा अगर हम देखें ज्योग्राफी देखें कि आखिर वो लोग कहाँ से हैं, तो ज्यादातर लोग ये इंडिया से हैं। अगर व्यूअर एज देखें कि उनके एज ग्रुप क्या था, तो उतना डेमोग्राफी जो है ये अभी फेसबुक ने सॉरी यूट्यूब ने नहीं दिखाया यहाँ पे, क्योंकि शायद उतना क्राउड नहीं होगा। और इसके अंदर देखने वालों में ज्यादातर लोग जो हैं वो मेल हैं, कुछ फीमेल भी होंगे। और ये जो डेटा है इसके अंदर कुछ डेटा ऐसा भी रहता है जो एस्केप हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट लॉग्ड इन फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट। तो जब आप लॉगिन नहीं होते हैं, ऐसे ही आपने लिंक को क्लिक किया और आप लॉगिन नहीं होते अपने जीमेल अकाउंट में, तो वो अनस्पेसिफाइड सोर्सेज के तौर पे ले लेता है। उसी तरह से अगर मैं डेट को देखूं तो डेट के एतबार से भी ये पता चलता है कि कौन से दिन में कितना व्यूज हैं और क्या है। आप देख सकते हैं किस दिन कितना व्यू है। तो ये हमें ये बताता है कि किस दिन और किस टाइम में हम पोस्ट कर रहे हैं और किस हिसाब से पोस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे को व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन स्टेटस है कि कैसे ग्रो कर रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसे ग्रो कर रहा है। तो देख सकते हैं कि सब्सक्राइब्ड लोगों ने जो देखा है, यानी वो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। नॉट नेसेसरली कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बट उन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वहां पे उनको कुछ दिखा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दे आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियोस। तो ये एक प्रोपोर्शन है कि 903 लोगों ने अगर वीडियोस देखा है तो उसमें इतने लोग सब्सक्राइब हैं और इतने लोग सब्सक्राइब नहीं है। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन सोर्सेज का है, तो बहुत सारी जगहों पे चूंकि डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, 50 के आसपास लोग हैं अभी सब्सक्राइबर में, तो इसलिए बहुत ज्यादा एनालिसिस डेटा नहीं है। बट ये बता देता है कि यूट्यूब के वॉच पेज से कितने सब्सक्राइबर्स आए, सर्च से कितने आए, दूसरे रिसोर्सेज से कितने आए हैं। तो ये सारे एनालिसिस रिपोर्ट आपको बताता है, जो कि आपको हेल्प करता है इस बात के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस क्या है। तो हम कुछ भी करें, अगर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी कितनी आमदनी है, अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हमारा कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसी तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गूगल एनालिटिक्स या यूट्यूब एनालिटिक्स, ये सारी चीजें एनालिसिस आपको इस बात के लिए इनकरेज करता है कि आप ये देखें कि आखिर अल्टीमेटली सोर्स क्या है और लोगों को कहां से क्या क्या आ रहा है। उसी तरह से मैं एक दूसरा एनालिटिक्स सोर्स में दिखाता हूं, जिसके अंदर एक साइट है, सेफ ट्रांस की एक साइट है जो कि दुबई बेस्ड है और वो लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर है। इन द सेंस वो बसेस और टैक्सी सर्विसेज को रेंट पे देते हैं, बसेस फॉर एम्प्लॉयज एंड स्कूल्स और टैक्सी सर्विसेज फॉर ओपन पीपल। वो किसी के लिए भी हो सकता है, बट क्योंकि लॉकडाउन अभी जस्ट ओपन हुआ है विद रिस्ट्रिक्टेड थिंग्स, ट्रैफिक उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये दिखा रहा हूं कि आपको यहाँ पे रियल टाइम सिनेरियो के अंदर भी पता चल जाता है कि अभी इस वक्त कोई साइट पे है या नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं रियल टाइम में जा रहा हूं तो यहाँ पे 0%, यानी कोई आदमी जो है ट्रैफिक पे राइट नाउ नहीं दिख रहा है। उसी तरह से अगर दिखेगा तो वो कौन से लोकेशन से है, किस ट्रैफिक सोर्स से है, ये सारी चीजें बताएगा। वेयरएज अगर हम आगे जाएं और ऑडियंस की ओवरव्यू में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डेट रेंज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप चूज कर सकते हैं कि कितने तारीख से कितने तारीख तक आप देखना चाहते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूं कि जब से शुरू हुआ था या उस टाइप से एक लंबा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ताकि यहाँ से जो आप देख रहे हैं एप्रिल, ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ से लॉकडाउन और डेड टाइम बिल्कुल शुरू हो गया था। बट उससे पहले चूंकि ये साइट बिल्कुल नहीं थी, तो ये है कि भाई इतने लोग जो न्यू विजिटर है, आप देख सकते हैं कि 95% लोग न्यू विजिटर हैं और ओनली 5% जो लोग हैं वो रिटर्निंग विजिटर्स हैं। और इसके अंदर आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं, जो एक्टिव यूजर्स हैं या फिर ऑडियंस कहां से आया है, ऑडियंस देख सकते हैं हम। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि यूजर ने इसको किस तरह से नेविगेट किया है, यानी कौन से आईपी से वो लोग आए हैं, वो भी हमारे सामने ट्रैक हो जाता है। और उसके बाद आप ये देखिए कि डेमोग्राफी के अंदर, डेमोग्राफी इन द सेंस किस एज ग्रुप के कितने लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं एनोटेट का एक ऑप्शन जो है ये कर लेता हूँ सो दैट आपके लिए आसानी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
किस एज ग्रुप के लोग इस साइट को ब्राउज कर रहे हैं ज्यादा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जेंडर फीमेल और मेल के ऊपर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इंटरेस्ट कैटेगरी, लोगों का इंटरेस्ट कैसा था। जिन लोगों ने इस वेबसाइट को ब्राउज किया है मोस्टली उनका इंटरेस्ट कैसा था, वो स्पोर्ट्स से थे, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से थे, या कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, फूड एंड ड्रिंक्स हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो ये आपको दिखाता है कि आपको किस तरह के इंटरेस्ट के लोग आपके वेबसाइट को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जेंडर ये देख लिया हमने, इंटरेस्ट भी देख लिया। जियो हम देख सकते हैं कि भाई कौन से लोकेशन से और किस लैंग्वेज के अंदर ये चीज आ रही है। तो आप देखें, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोकेशन से इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है और लोग इनकी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में हैं, और अलग अलग कंट्री का भी अगर ड्रिल डाउन चाहें तो वो बाद मौके पे वो भी दिखा देता है कि भाई उस कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ से लोग सर्च कर रहे हैं। उसी तरह से लैंग्वेज के अंदर भी हम जाके देख सकते हैं कि भाई किस किस लैंग्वेज के लोग इस साइट को ब्राउज कर रहे हैं। ये साइट इंग्लिश में है, लेकिन लोग जो सर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ सर्च कर रहे हैं। ये इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, जीबी, डेनमार्क, इटालियन, हांगकांग, ये फ्रेंच, ये अलग अलग जो इंग्लिश, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है तो उससे रिलेटेड है। अगर हम बिहेवियर को देखें, न्यू वर्सेस रिटर्निंग, कि कितने न्यू हैं और कितने रिटर्निंग है, तो ये हमने शुरू में ही देखा। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो भी हम देख सकते हैं कि किस ब्राउजर से ज्यादातर लोग आ रहे हैं। क्रोम से आ रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से आ रहे हैं, सफारी से आ रहे हैं, मोजिला से आ रहे हैं, फायरफॉक्स से आ रहे हैं, तो ये सारे, और ऐप से भी आ रहे हैं, तो ये सारे ब्राउजर से रिलेटेड हैं। उसी तरह से जब आप मोबाइल में जाएंगे तो मोबाइल के अंदर भी ये दिख के आ जाता है कि मोबाइल के कौन से सोर्स से वो आ रहा है। डेस्कटॉप से, मोबाइल इन द सेंस डेस्कटॉप से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, टैबलेट से आ रहा है। तो आप देखें मोबाइल और डेस्कटॉप से, यानी मोबाइल पे ऑलमोस्ट 50% ट्रैफिक है, जो डेस्कटॉप पे है उसका 50% ट्रैफिक मोबाइल पे है, टैब पे उतना नहीं है। तो हम मोबाइल के ऊपर भी अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रखें और मोबाइल के ऊपर हम स्ट्रेस करने की कोशिश करें। उसी तरह से अगर हम देखें यूजर फ्लो को, अगर देखें जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ में आ जाता है कि यूजर फ्लो, इससे ये पता चलता है कि अगर एक आदमी जो यूनाइटेड स्टेट्स से आया है, इतने सेशंस बने हैं, तो इस पेज में आने के बाद वो कौन से नेक्स्ट पेज पे गया है। तो अगर आप ये देखें कि अगर इस पेज पे गया है, यानी होम पेज पे गया है, ये जो है ये होम पेज का है, इसके बाद कहाँ गया है, तो बहुत सारे सेशंस कॉन्टैक्ट पे गया है, कुछ ब्लॉग पे गया है, कुछ बस रेंटल पे गया है, कुछ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे गया है, कुछ अदर पेजेस पे गया है। उसी तरह से और भी जब हम नेविगेट करेंगे, राइट साइड में जब हम नेविगेट करेंगे तो आपको और पता चलेगा नेक्स्ट लेवल पे, यानी इस पेज के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे कहाँ गए। फिर उसके बाद ये आपको एक स्पेशल कोड आ रहा है। स्पेशल कोड का मतलब ये है कि लोगों ने कुछ फॉर्म फिलअप किया है, वहां पे कुछ डायनेमिक चीजें रन हुई हैं और इंक्वायरीज जनरेट हुई हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पे आप देखिए कि ब्लॉग पे फिर गए हैं, फिर यहाँ गए हैं, फिर रेंट ए कार पे गए हैं, लिमोजीन सर्विसेज पे गए हैं, एंड एडिशनल पेजेस पे गए हैं। तो ये आपको ये दिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं और आने के बाद वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर इंडिया से जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ये बताता है। उसी तरह से जब हम एक्विजिशन के ऊपर जाते हैं तो ये बताता है कि हमारा सोर्स क्या है, हमारे पास जितने भी ट्रैफिक जनरेट हुए हैं उसका सोर्स क्या है। आप देखें डायरेक्ट है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग कर रहे थे। ऑर्गेनिक सर्च इन द सेंस गूगल से है, और सोशल इन द सेंस फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन से होगा। रेफरल यानी किसी और वेबसाइट से, जैसे हम फर्स्ट डे डिस्कस कर रहे थे कि हमें अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर लिस्टिंग करना है, वहां से जब लिंक जनरेट होता है, वहां पे जब लिस्टिंग जनरेट होती है तो आपको वहां पे रेफरल्स मिल जाते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पे ये भी बता रहा है कि बाउंस रेट क्या है, इन द सेंस लोग अगर आ रहे हैं तो कितना जल्दी वो आपकी वेबसाइट से चले जा रहे हैं, और एवरेजली कितना पेज देख रहे हैं, और कितने सेशंस उनके पेज पे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम गूगल एड्स की बात करें, चूंकि इस साइट के ऊपर हमने गूगल एड नहीं रन किया है तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे गूगल रन नहीं हुआ है। ठीक है, हम लैंडिंग पेज देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है लैंडिंग पेज के ऊपर लोग आए हैं, तो वो ऑलरेडी हम लोग ये देखे हैं। उसी तरह से बिहेवियर के ऊपर अगर हम जाएं तो हमें ये पता चलेगा
कि आफ्टर ऑल लोग आने के बाद हमारी वेबसाइट से क्या, तो ये एक समरी है कि हमारी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस जो हैं वो पॉपुलर पेजेस हैं। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग यहाँ पे वेबसाइट से आ रहे हैं या वेबसाइट पे आने के बाद वो ब्लॉग पे जा रहे हैं। अगर कंटेंट ड्रिल डाउन करेंगे कि उस पर्टिकुलर पेज के बाद वो क्या कर रहे हैं, वहां से कहाँ जा रहे हैं, तो ये वो पर्टिकुलर पेजेस हैं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। उसी तरह से लैंडिंग पेज का ऑप्शन आता है, और लैंडिंग पेज इन द सेंस कहाँ लोग इंटर कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं। यानी आपके पेज पे लोग आ रहे हैं और आने के बाद वो ब्राउज करने के बाद आप उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, या तो इस वजह से वो जा रहे होंगे या फिर उनका पर्पस सॉल्व हो जा रहा होगा, इस वजह से जा रहे होंगे। तो आप देखें जैसे कंफर्म न्यू है, प्रोबेबली ये एक थैंक यू मैसेज पेज है कि आदमी साइन अप कर लिया, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर लिया, उसके बाद का है सीबी ऑन मॉब एक पेज है, इसी तरह से ये कंफर्म है। तो मुमकिन है बहुत सारे लोग इस पेज को कंफर्म करके एग्जिट कर रहे हो, यानी अपना इंक्वायरी डालने के बाद एग्जिट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे ही उनको इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट नहीं लगा हो तो वो एग्जिट कर जा रहे होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बस रेंटल का भी है, दुबई सिटी टूर का भी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के भी हैं, तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से हम पेज स्पीड को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट का स्पीड कैसा है, कितने सेकंड में वो होता है। तो मोजिला के अंदर 1 सेकंड में हो रहा है, कंफर्टेबल एजेंट 3 सेकंड में हो रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इतना है। तो शॉर्टर द डाउन टाइम बेटर इज द वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या है, गूगल आपको स्पीड सजेशन भी दे देता है कि आपको कहाँ पे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये वो सारी चीजें जो है आपको मिल जाती हैं एनालिटिक्स से। और इसको इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कोड होता है, आप लोग एक नोट डाउन कर ले, मैं यहाँ पे एक मेंशन कर रहा हूँ, analytics.google.com ये लिंक होता है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, analytics.google.com यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ उसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। नाउ अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वहां पे जाके क्रिएट एनालिटिक कोड कर सकते हैं। वो बहुत ही बेसिक स्टेप है, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है और वेबसाइट के यूआरएल देने के बाद वो कंफर्मेशन कोड देता है, 5-6 लाइन का कोड देता है। ये आपका वेब डेवलपर आपको आपकी वेबसाइट में इंसर्ट कर देता है। तो जब वो इंसर्ट हो जाता है, गूगल वेरीफाई कर देता है, तो ये सारी चीजें आपको आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हम एनालिटिक्स को ये देखते हैं कि भाई हमारा एनालिटिक्स कौन से सोर्स के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह से अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, इन द सेंस मल्टीपल सोर्सेस पे आप जो है, एक वेबसाइट आपकी अपनी वेबसाइट है वहां आप सेल कर रहे हैं, दूसरा ये है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आप फेसबुक के ऊपर सेल कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर जैसे कैटलॉग सेल का ऑप्शन है, या फिर आप किसी और ब्लॉग के जरिए से आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो भी चीजें आप जनरेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आप इसके जरिए से इसको देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि कैसे हम फेसबुक, गूगल, यानी हमने जो कुछ भी किया, ये 5 दिन हमने जो कुछ भी लर्न किया उसको इंप्लीमेंट करने के बाद बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हमारा ट्रैफिक जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ये हमारा बॉटम लाइन है। जब अगर ट्रैफिक जनरेट हुआ तो हम ये देखेंगे कि भाई लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने टाइम तक रह रहे हैं, लॉन्गर दे आर ऑन द वेबसाइट, बेटर इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई हाँ हमारी साइट पे परफॉर्मेंस हो रहा है। नेक्स्ट लेवल पे जब आप परफॉर्मेंस इंप्रोवाइजेशन की बात करते हैं तो आपके सामने ये टारगेट हो जाता है कि अभी अगर हमारे साइट पे 10 सेकंड लोग रह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम अपने कंटेंट को इतना एंगेजिंग बनाएं, जैसे शुरू के डिस्कशन में डॉक्टर साहब आपने भी कहा और अदनान साहब ने भी ये कहा कि हमें जो है कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कंटेंट हमारा एंगेजिंग होगा उतना लंबे ड्यूरेशन हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे होगा। जब लंबे ड्यूरेशन तक होगा तो कन्वर्जन अपने आप शुरू हो जाता है। लोग दुकान में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं तो सेल नहीं होता। वो आते हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा बिताते हैं दुकान के अंदर
तो अल्टीमेटली लाजमी है कि कुछ ना कुछ सेल हो जाता है, और इस टाइम नहीं होता तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि अरे हाँ ये स्टोर है, क्योंकि उसमें इतना टाइम उन्होंने बिताया है, तो नेक्स्ट टाइम वो जरूर कुछ ना कुछ वो परचेज करके जाते हैं। तो ये ओवरव्यू है इन सारे प्रोसेस का। जैसे मैंने आपको यूट्यूब चैनल का मैंने आपको एक ओवरव्यू आपको बताया कि यूट्यूब का एनालिटिक्स आप कैसे देख सकते हैं, उसी तरह से आप इसका एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि फेसबुक के ऊपर हमारा एनालिटिक्स किस तरह से आता है, ताकि आपके लिए वो भी आसानी हो जाए। आप लोगों को मेरा फेसबुक का पेज दिख रहा है? जी सर दिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंपेन्स जो रन हुए थे उसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ताकि हमारे सामने ये आ जाएगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे और कितनी है। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऑलराइट, तो अब जैसे ये हमारा एक कैंपेन है जिसके ऊपर हमने कुछ पैसे लगाए। आपके सामने ये क्लियरली नजर आ रहा होगा कि एक YouTube का एक हमने वीडियो बना के उसको हमने प्रमोट किया था, तो इसके ऊपर कितने रुपए लगे आप खुद देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 100 रुपए खर्च किया है, और 55 लोगों ने हमारे लिंक को क्लिक किया है, और 6226 लोगों तक ये हमारा एड गूगल फेसबुक पे पहुंचा है। उसी तरह से अगर आप दूसरा एड देखें कि जो पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड था, तो मैं इसको क्लिक करता हूं सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। आप ये देखिए कि ये कैंपेन हमारा कंप्लीट हो चुका है और कितने लोगों तक पहुंचा है, 3822 लोगों तक पहुंचा है, और इतने लोगों का एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट इन द सेंस they must have liked my page, they must have commented on my page, or they might have shared my page। और पर एंगेजमेंट का हमें 48 पैसे हमारे को कॉस्ट आया। सो अगर 932 लोगों ने एंगेजमेंट दिया है तो ऑलमोस्ट 444 रुपीज का 4 दिन के अंदर मैंने खर्च किया इस चीज के ऊपर, और ये इसका रिजल्ट है। अब आप देखें कि लिंक को कितने लोगों ने क्लिक किया। 12 लोगों ने लिंक को क्लिक किया, 3 लोगों ने फोटोज को क्लिक किया, 2 लोगों ने कमेंट किया, 3 लोगों ने शेयर किया। और ये इसी तरह से अगर आप राइट साइड में थोड़ा नीचे चले जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेन किस एज ग्रुप के लोगों ने इसको ज्यादा देखा है। तो 73% ऑफ द पीपल इन एज ग्रुप बिटवीन 25 to 34 दे हैव वॉच्ड दिस वीडियो। उसी तरह से फीमेल 35 to 44 एज ग्रुप के अंदर, ठीक है, फीमेल का भी वही एज ग्रुप है, 25 से 34 के बीच में उन लोगों ने ही ज्यादा देखा है। बट 5% ऑफ फीमेल एंड 94% ऑफ मेन हैव वॉच्ड दिस वीडियोस। बाकी वीडियोस जैसे 35 to 44 के अंदर है, थोड़े कम परसेंटेज। अब आप प्लेसमेंट पे जाते हैं तो प्लेसमेंट में क्या दिख के आता है, इंस्टाग्राम फीड में कितना आया है, और न्यूज फीड मोबाइल ऐप के ऊपर कितना आया है, और कंप्यूटर फीड के ऊपर कितना आया है। तो आप ये देखिए कि इंस्टाग्राम मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियंस जनरेट हो रहा है, यानी अगर वीडियोस आप प्रमोट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और हमने कहाँ प्रमोट किया है, ऑडियंस नेम क्या है, हमने हैदराबाद के 25 किलोमीटर के अंदर ही, तेलंगाना में हैदराबाद के 25 किलोमीटर के अंदर ही हमने इसको प्रमोट किया है। और ये कौन से लोकेशन पे हमने प्रमोट किया है, तो जो लोग हैदराबाद में रह रहे हैं, लिविंग इन पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, वही लोग हैं। और ये कौन सा ऐड था, तो ये वाला ऐड था जिसके अंदर हमने ये प्रमोट किया था कि भाई आप साइन अप करें, हमारे इस कोर्स को आप साइन अप करें। उसी तरह से अगर आप किसी और इसको आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक आपके सामने एक इंक्रीज एडमिशन का एक ऐड हम लोगों ने काफी पहले हम लोगों ने रन किया था। अब आप ये देखें कि मैसेज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, मैसेज कम्युनिकेशन, यानी लोग हमसे मैसेज के जरिए से कम्युनिकेट करें। हमने कितना खर्च किया, हमने 157 रुपीज सिर्फ हमने खर्च किया है। आप देखें 157 रुपीज खर्च किया, 7 people have communicated with us, so पर कम्युनिकेशन हमारा 22 रुपीज है। ये कितने लोगों तक पहुंचा, 3000 लोगों तक पहुंचा, 33 एंगेजमेंट्स हुए, उसमें 7 लोगों ने कम्युनिकेट किया,
तो ऑलमोस्ट 33 एंगेजमेंट एंड 7 लोगों ने कम्युनिकेट किया, तो एक 30% का करीब करीब हमारा परफॉर्मेंस है। लिंक को कितनों ने क्लिक किया, फोटोज को कितनों ने क्लिक किया, कमेंट कितनों ने किया, और उसी तरह से मेन और वुमेन और मेन का प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, प्लेसमेंट देख सकते हैं, कहां से आया है। मैसेंजर, आप ये देखिए मैसेंजर इनबॉक्स, हमने फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर पढ़ा था कि हम प्लेसमेंट के अंदर मैसेंजर के अंदर भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेंजर में कितनी बार ऐड दिखा है, मोबाइल पे कितनी बार दिखा है, मार्केट प्लेस पे कितनी बार दिखा है, तो ये सारा आपको ऑप्शन नजर आ जाता है। अब मैं लोकेशन पे जाता हूँ, चूंकि मैंने पैन इंडिया इसको टारगेट किया था, तो आप ये देखिए कि कहाँ से है। जम्मू एंड कश्मीर से है, उत्तर प्रदेश से है, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है, मध्य प्रदेश से है। अगर मैं सी ऑल करता हूं तो और भी लोकेशन से कहां से लोगों ने हमारे ऐड को देखा है। तो ये सारा का सारा डिटेल हमारा अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, ये सारी जगहों से हमारे एड्स जो है जिन लोगों ने देखा है उसको ये ऐड देख के आ रहा है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने ये बताया था कि लीड जनरेशन के बारे में अगर हम करें, तो जैसे ये एक लीड जनरेशन कैंपेन है, मैंने बताया था कि लीड जनरेशन कैंपेन हमेशा महंगा होता है। तो कभी कभी ये लीड जनरेशन कैंपेन आप देख सकते हैं कि हमने फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट करने की बात की और पर डे हमने 200 रुपए का बजट लगाया था, लेकिन कॉस्ट पर लीड काफी कॉस्टली होने की वजह से हमने इस कैंपेन को रोक दिया। हमने इस कैंपेन को बहुत लंबे टाइम तक रन नहीं किया और हमने इसको रोक दिया। वजह क्या है कि ये बहुत ज्यादा हमें रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन हमारा कॉस्ट पर लीड जो है बहुत महंगा हो गया, इसलिए हमने इसको रोक दिया। वहीं पे एक और कैंपेन हम देख लेते हैं। सिर्फ एग्जांपल, ये एक कैंपेन देखते हैं जिसके अंदर हमने एक तकरीबन 2000 रुपए के आसपास हमने खर्च किया। ये आईआईटी और जेईई से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने खर्च किया और 31,000 पीपल तक पहुंचे हैं, 36 लीड्स जनरेट हुए हैं और पर लीड का ये कॉस्ट आया है। अब लीड कैसे हमें पता चलता है, आप खुद यहाँ देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लीड था, उस आदमी का नाम, उसका फोन, उसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो किसके लिए ये इंक्वायरी करना चाहता है, तो वो सन के अपने बेटे के लिए करना चाहता है। उसी तरह से दूसरा एक लीड देख लें, ये अहमदनगर के हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, तो ये साहब खुद अपने लिए करना चाहते हैं। सो इन दीज वे यू विल रिसीव लीड्स, और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड लीड्स, क्योंकि ऑलरेडी लीड सारे डाउनलोडेड हैं, लेकिन फिर भी हम डेट रेंज के हिसाब से लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लाइफ टाइम लीड्स चाहते हैं तो लाइफ टाइम होगा। अगर हम 11 से 15 के बीच में लीड चाह रहे हैं तो 11 से 15 के बीच का लीड हमारे सामने आ जाएगा। ये 13 लीड्स हैं, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ एनालिटिक्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ भी करें, बॉटम लाइन यही है कि हमारा एनालिटिक्स अगर वर्कआउट हो रहा है, हमारे कैंपेन का अगर एनालिटिक्स वर्कआउट हो रहा है तो हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हमारे कैंपेन का ये वर्कआउट नहीं हो रहा है तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब आप लोगों के सामने मैंने कुछ कैंपेन क्रिएट किया था फेसबुक के ऊपर 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो भी हमने क्रिएट किया था, मैं उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि ये तो पहले से रन हो रहा था, क्या पता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि कल जो हम लोगों ने एक रात के सेशन में जो हमने कैंपेन क्रिएट किया था उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं, आपको भी पता चल जाएगा। जबकि मैंने उस कैंपेन को रोक दिया है, बट फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पे कैंपेन लाइव हुआ और जो रिजेक्ट हुआ वो भी, जैसे जो रिजेक्ट हुआ वो भी पता चल जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये वाला कैंपेन है जिसके अंदर कंटेंट ज्यादा था और मल्टीपल इमेजेस हम लोगों ने यूज किया था, ये रिजेक्ट हो गया है। वेयर एज ये वाला कैंपेन जो वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड हमने जनरेट किया था, 1000 लोगों तक पहुंचा है, 32 रुपीज आई हैव स्पेंट एंड 12 क्लिक्स हैज हैपेंड, 12 लोग हमारी वेबसाइट पे पहुंचे। उसी तरह से एक फॉर्म फिल के लिए हमने क्रिएट किया था, एक लीड जनरेट हुआ 173 रुपीज के ऊपर, क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा नहीं था और हमने सिर्फ रैंडमली इसको टेस्ट के तौर पे हमने क्विकली इसको जनरेट किया था। तो ये 2 दिन का कैंपेन है। ये कब शुरू हुआ? मई 15 को हमने शुरू किया और आज मई 16 को हैं हम, ठीक है। तो ये मई 15 को रात में हमने कैंपेन क्रिएट किया था जो नाइट सेशन है,
उनके साथ हमने किया था, उसके बाद ये एक्टिव हुआ तो मैंने इसको पॉज कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप सारे कैंपेन को भी देख सकते हैं। अब जैसे ये लीड आया है तो लीड के अंदर हम जाके उस आदमी का डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, इसका नाम है, इसका ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, और ये 6 घंटे पहले ये लीड आया था। तो हम इन चीजों को देख सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि भाई कौन सी चीज कब आई है। अब यहाँ पे आप देखें कि न्यूज फीड में कितने आए, मोबाइल इन स्ट्रीम में आए, फेसबुक स्टोरीज में आए, न्यूज फीड के अंदर आए। तो ये सारे वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पूरा ब्रीफ है आपके सामने रिलेटेड टू गूगल एनालिटिक्स, रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के वीडियो का एनालिटिक्स, रिलेटेड टू फेसबुक एनालिटिक्स। तो दिस इज हाउ वी आर ओवर हियर। और मेरे ख्याल से नाउ आई विल मेक ए पॉज ऑफ स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चले जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग किस बिजनेस में हैं, क्या है और आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जी, तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जरूर लगा होगा ये एनालिटिक्स का। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम एनालिटिक्स को समझ ले रहे हैं कि यानी कैसे हमें डेटा निकालना है, तो वो आपके लेवल पे ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका डेटा निकालने का प्रोसेस आपके समझ में आ जाता है तो बहुत सारी चीजें और आसान हो जाती हैं। तो और किन्हीं के एज ऑफ नाउ जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तकरीबन चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक एक टॉपिक को मैंने कोशिश किया ये 5 दिन के अंदर टच करके डिटेल्ड वे में जाने के लिए, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिकैप कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए से। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी वो रिपॉजिटरी है और आप उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा चीज़ हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अगर आपको चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने क्लेम किया था कि आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना फुल नेम, अगर आप अपना फुल नेम जो एग्जैक्ट नाम हो है आपका, वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है अगर उसके अंदर डाल दिए तो हम डिजिटल सर्टिफिकेट ही आपको हम भेज देंगे, ताकि वो आपके लिए एक कुछ नहीं बट एक आपके लिए एक है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नॉट दैट, इट्स बेसिकली अ कोर्स completion certificate on the behalf of Digitos. So this is all about. So अगर आप लोग डाल दिए तो बहुत अच्छी बात है, and then I'll share digital copy of certificate. In the meantime, जब तक आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड तो आज सर लास्ट दिन है बस? जी 5 दिन का हमने कहा था, 12 से 16, और आज लास्ट दिन है। इसमें सर ये मोबाइल मार्केटिंग है, डिस्प्ले एनालिसिस है, तो इसके बारे में तो ज्यादा नॉलेज तो कुछ पता नहीं चला। मोबाइल मार्केटिंग के बारे में ही मैं, जब आप शायद उस टाइम पे नहीं ज्वाइन किए हुए थे, तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही काफी कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो क्या नाम, आज? जी आज आप थोड़ा देर से लेट हो गए। जी तो शुरू में हम वही कर रहे थे। और जहां तक डिस्प्ले ऐड की बात है, तो डिस्प्ले ऐड के बारे में आपको ध्यान होगा, मैं फिर से चला जाता हूँ गूगल ऐड क्रिएशन के अंदर, जहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर रहे थे और ऐड अंडर रिव्यू गया था, तो वहाँ पे अगर आपके पास बैनर है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से ऐड कैंपेन के अंदर चला जाता हूँ और फिर मैं आपको वहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ कि, लेकिन यासीन भाई मेरा आपसे सवाल है, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने इन 4 दिनों में प्रैक्टिस क्या क्या किया आपने? गूगल बिजनेस का अकाउंट कोई खोला था, उसे करा था मैनेज, लेकिन उसमें वेबसाइट मांग रहे हैं तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। मैंने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो गूगल माई बिजनेस के अंदर आप पेज क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे वेबसाइट, उसी लिंक को आप वेबसाइट के तौर पे आप बता सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था वो चीज। वो रन तो हो गया, लेकिन वेबसाइट का कंफर्म नहीं हो पाया कि वेबसाइट बिल्कुल जरूरी उसमें मस्ट है कि नहीं।
वहाँ पे वेबसाइट का लिंक होना है। तो जो आप गूगल माई बिजनेस का पेज बना रहे हैं उसके अंदर मैंने बताया था आपको, फिर भी मैं अभी फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। जो फेसबुक का एड रन कैंपेन तो करा था हमने पहले से, थोड़ा उसके बारे में थी नॉलेज, तो वो तो आसान हो गया था। फ्री गूगल वेबसाइट आप ये सर्च करें, आपको यहाँ पे गूगल का ये फ्री वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक पेज का वेबसाइट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ इलेक्ट्रिक शॉप मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक इलेक्ट्रिक शॉप फ्रॉम अलीगढ़ करके मैंने ये चीज़ बनाया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये कलेक्ट कर रहा है फोटोग्राफ्स को। तो आप ये वाला जो पेज है business.google.com जो मैंने अभी सर्च किया है, यहाँ पे आप जाके इस चीज़ को आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहें, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप एडिट दिस वेबसाइट, यू वांट टू एडिट दिस वेबसाइट, यू कैन एडिट इट। तो फ्री के ऑप्शन जो है ना वो आपको थोड़ा सा लिमिटेड मिलता है, और पेड ऑप्शन के अंदर जब चले जाते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। या दूसरा मैंने आपको बताया था, आप लोगों को सबको मैंने बताया था blogger.com और wordpress.com। मुझे नहीं पता है कि उस चीज को आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है, मुमकिन है प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप प्रैक्टिस करें। तो आपको वेब पेज का जो क्वेश्चन है, वेब पेज का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आप इस पेज को जो फाइनली पब्लिश होने के ऊपर जो पेज बन के आएगा, जो फाइनली पब्लिश होके जो पेज बन के आएगा, चूंकि यहाँ पे मेरा ईमेल अकाउंट और जीमेल अकाउंट ये सारी चीजें पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, बट आप इस पेज के अंदर जाके जब आप इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वो पेज क्रिएट हो जाएगा। और जब पेज क्रिएट हो जाएगा तो आप उस चीज को एड क्रिएशन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और गूगल के अंदर और चीज हमने बताया था कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप कॉल ऑनली कैंपेन रन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वहां पे फोन नंबर और वो सारी चीजें। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये चीज आ गई है। आप यहाँ पे डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन को क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए और आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हैं और ये पेज आपका रेडी हो जाएगा। जैसे हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर लैंडिंग पेज बना रहे थे उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेल शिफ्ट के अंदर जो लैंडिंग पेज क्रिएट करने का ऑप्शन है, आप वहां जाके लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्री का है, और उस पेज के यूआरएल को आप अपने एड कैंपेन और एड मैनेजमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी जी। अब अगर हम कैंपेन के ऊपर जाते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कैंपेन्स को मैंने पॉज कर रखा है, बट फिर भी मैं जाता हूँ, ये एक टेस्ट डेमो है। मैं यहाँ पे फिर से एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ, कैंपेन है, ठीक है, क्रिएट कैंपेन आएगा, न्यू कैंपेन आएगा। न्यू कैंपेन के अंदर यहाँ पे आप देखें, जब हम लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे एक ऑप्शन नजर आया था कि ड्राइव सेल, वो हमारे फोन से हो सकता है, ऐप से हो सकता है, लीड का है, वो कन्वर्जन है, वेबसाइट ट्रैफिक है, पीपल कैन विजिट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस है, ये चीज हो सकता है। तो हम ब्रांड एंड रीच को लेके अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, डिस्प्ले ऐड आता है, वीडियो आता है। तो आपका यही दो क्वेरी है, शायद मैं इन्हीं दोनों क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब डिस्प्ले ऐड हम लेके चल रहे हैं, योर वेबसाइट, योर बिजनेस वेबसाइट, मैंने एक चीज कहा है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर खुद एक प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बट फिर भी इट्स ओके। यहाँ पे डिस्प्ले रीच है, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, हम कहाँ पे करना चाहते हैं इसको, मैं हैदराबाद के लिए मैं सिर्फ अभी डाला हूँ, ठीक है। डिस्प्ले ऐड इंप्रेशन बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर
कन्वर्जन यानी उस इमेज को क्लिक करने के बाद वो अगर पेज के अंदर अगर आपके पास कॉल टू एक्शन कोई ऑप्शन है तो वहां जाएगा, बट डिस्प्ले ऐड ज्यादातर आपको इंप्रेशन जनरेट करेगा, ऑन क्लिक ये आपकी वेबसाइट तक लेके जाएगा। डिस्प्ले ऐड पे इमीडिएटली वहां पे आप इंक्वायरीज नहीं जनरेट कर सकते हैं, ये आपके वेबसाइट का अवेयरनेस बढ़ाएगा और ये आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। ऑप्टिमाइज प्रेफर द बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। ऑल द डे करना है या फिर हम रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं कि हम सिर्फ मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे या संडे कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिर्फ सैटरडे चूज किया है और मैं यहाँ पे अपने टाइम को चूज कर सकता हूँ कि कौन से टाइम पे मैं अपना ऐड रन करना चाहता हूँ। तो फर्ज कर लीजिए मैं अपना ऐड 5:30 बजे से रन करना चाहता हूँ, ये रात के मिडनाइट तक ये जाएगा। ठीक है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट, मैं एंड डेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 17 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अगर गलती से भी रह गया तो मेरे पैसे ज़्यादा लॉस में ना जाएं। लेट गूगल एड ऑप्टिमाइज हाउ ऑफन योर एड शोज, ये हमने ये चीज़ किया है। कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस जो लेवल है वो हो जाता है और यहाँ पे आपको जैसे आइडियाज़ है कि किस किस कैटेगरी के अंदर आप अपने ऐड को डालना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज चूज कर लेता हूँ, किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड दिखे। वही सेटिंग है जो हमने गूगल एडवर्ड के लिए बताया, वही सेटिंग है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक नहीं आता, सीपीएम आता है। सीपीएम बोले तो कॉस्ट पर 1000, एवरी 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपको बिलिंग होगा कि 1000 इंप्रेशन का। मैं ये कहता हूँ कि 1000 इंप्रेशन के लिए मैं सिर्फ 10 रुपीज देना चाहता हूँ कि हर 1000 इंप्रेशन के लिए 10 रुपीज है। अब यहाँ पे न्यू एड हम जनरेट करें, अपलोड डिस्प्ले एड। चूज ए फाइल टू अपलोड, मैं यहाँ पे एक फाइल चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या कह रहा है अब? ये कह रहा है कि आपके फाइल का साइज 189 KB है, ये सिर्फ 150 या उससे कम होना चाहिए। तो हमें दूसरा इमेज चूज करना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा इमेज है उससे कम का या नहीं है, ये भी ज़्यादा है, सो हम इसको भी नहीं ले सकते। कोई और इमेज देखते हैं, अगर वो होगा तो उसको देखते हैं। दिस इज ऑल्सो लिटिल हायर साइड ऑफ इट। तो हमें कोई एक ऐसा इमेज लेना पड़ेगा जो कि हमें ये होगा। तो मैं यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला इमेज ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, पता नहीं ये कितना अप्रोप्रिएट होगा, मुझे नहीं पता, बट हम ट्राई कर लेते हैं। अगर ये होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो आपको उसी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का इमेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। Ad size is 620 by 310, this is not going to fit। तो इसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन होता है, तो उस डायमेंशन के अंदर जब तक आप इमेजेस को अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे, बाकी का प्रोसेस वही है जो कि हम लोगों ने गूगल पेड ऐड के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरे पास कोई अभी रेडीमेड हैंडी इमेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। अगर आपके पास कोई इमेज है, आप लोगों के पास कोई इमेज है तो शेयर करिए, मैं फिर उस चीज़ को अपलोड कर देता हूँ। अदरवाइज ये इतना ही है जो कि मैंने आपको बताया है, या इतना ही है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं एक और इमेज ट्राई कर लेता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर इट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट लेट मी ट्राई इट। नहीं है, ये भी
नहीं है तो सी द लिस्ट ऑफ सपोर्टिव इमेज एंड द फॉर्मेट। यहाँ पे ये एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से आपको अपने इमेजेस को अपलोड करना पड़ेगा। एक बार जब वो इमेज अपलोड कर देते हैं आप, तो फिर उसके बाद आपका ऐड अप्रूव हो जाता है। तो आपको डायमेंशन और केबी यानी कितने वेट का ये इमेज होना चाहिए वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसको अगर हम क्लोज करते हैं और उसके बाद अगर हम दूसरे ऐड क्रिएशन के ऊपर यानी अगर हम वीडियो के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम उसको देख सकते हैं कि वीडियो वाला क्या बोलता है। इसके अंदर आपके स्किपेबल ऐड होते हैं, यानी 5 सेकंड के बाद आपके ऐड को स्किप कर दिया जाता है। दूसरा है नॉन स्किपेबल ऐड है, आउट स्ट्रीम है, ऐड सीक्वेंस है। ऐड सीक्वेंस ये होता है कि एक वीडियो बहुत लंबा है, जैसे कोई मूवी है या कोई बड़ी सीरियल है या कोई भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो हर 15 मिनट के बाद जो है एक सिक्वेंशियल ऐड आ जाता है। तो मैं एक स्किपेबल ऐड का आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको अपना वीडियो क्रिएट करके ट्राई करना है। वीडियो आपको क्रिएट करना है और उसी के हिसाब से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे होगा? YouTube वीडियो में हो गए, और YouTube का वीडियो जहाँ जहाँ रन हो रहा होगा उन सारी जगहों पे ये चीज़ पब्लिश होगा। तो मैं ऑल लैंग्वेजेस ले रहा हूँ, इंडिया ऑल ले रहा हूँ, एडिशनल सेटिंग्स, ये ऑडियंस प्लेसमेंट, यहाँ पे YouTube का URL डालना है। तो मैं अपने प्लेलिस्ट में से एक YouTube का मैं डैशबोर्ड से YouTube का एक वीडियो मैं डाल देता हूँ। हमारे जो वीडियोस हैं उसमें से कोई एक वीडियो जो कि बहुत छोटा सा वीडियो है वो मैं डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो है, मैं यहाँ पे इसका ये ले लिया। आप देखें जो वीडियो है वो वीडियो का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। 5 सेकंड के बाद, ये 1 मिनट का वीडियो है, 5 सेकंड के बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद स्किप अगर कोई कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज ये चलता चला जाएगा। मोबाइल पे इस तरह से दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा? डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि बीच में इस टाइप से आएगा फाइनल URL। कॉल टू एक्शन क्या हम डालना चाह रहे हैं? कॉल टू एक्शन हम कैरेक्टर ही ये ले रहा है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑटो जनरेटेड फॉर द यूट्यूब चैनल, सो वी रिकमेंड कि सबसे पहला इमेज वही होगा जो इसका है, या हम
किसी और चीज़ को इमेज डालना चाह रहे हैं तो वो भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम और भी लंबा यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यानी ये सिर्फ डिस्प्ले में आएगा, ये क्लिकेबल नॉन क्लिकेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आपको गैप नहीं, बीच में आपको हाइफन या बगैर हाइफन के आप यहाँ पे, तो ये हमारा ये ऐड का ये डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। कॉल टू एक्शन है, अपलोड इमेज है, ऐड 1 को मैं यहाँ पे टेस्ट डेमो डाल देता हूँ, क्रिएट ए कैंपेन। ये 16 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। ये ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच इसका ऑब्जेक्टिव है। कैंपेन का गोल है, इन्वेंट्री ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, सारे लैंग्वेजेस में है, टारगेटेड ये है, और यहाँ पे आपको ये दिख सकता है कि आप क्या ऐड डाल रहे हो। इस तरह से ये आपका वीडियो ऐड रेडी हो गया, और ये आप देखेंगे ये एलिजिबल है, बट ये क्या है, अंडर रिव्यू आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ऐड अंडर रिव्यू दिखा रहा है, तो ये ऐड अंडर रिव्यू गया। गूगल इसको रिव्यू करेगा, जब रिव्यू करके वो अप्रूव कर देगा तो ये ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से ऐड हमारा दिखेगा। गूगल व्यू पार्टनर पे, पार्टनर लिस्ट पे कैसा जाएगा, वो ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेगा तो कॉल टू एक्शन पे चला जाएगा। आप देखिए गूगल वीडियो पार्टनर के मोबाइल वर्जन में इस तरह से आएगा, डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैदराबाद, और क्लिक हेयर करेगा तो हमारे डिजिटोस की वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर यूट्यूब में दिखेगा तो यूट्यूब में इस तरह से दिखेगा। डेस्कटॉप, यूट्यूब के डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगा, ये यहाँ पे ऐड इस टाइप से पूरा का पूरा ऐड आएगा, स्केपेबल और नॉन स्केपेबल, और गूगल के पार्टनर के अंदर वो इस टाइप से दिखेगा। तो ये आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन है। तो आपको अपना वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, एंड इट्स बेटर शॉर्टर द वीडियो दैट यू हैव। अगर आप एक 5-6 सेकंड के अंदर आप अपना मैसेज और वीडियो को आप अगर कंक्लूड कर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। वजह क्या है कि 5 सेकंड के बाद लोग ऐड को स्किप करते हैं। अगर मैं नॉन स्किपेबल ऐड बनाता हूं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और 1 मिनट तक आदमी को, यानी ये ऐड 1 मिनट तक देखना ही पड़ेगा लोगों को। तो हम उस फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, बट वो कॉस्टली पड़ता है। नॉन स्किपेबल ऐड हमेशा कॉस्टली पड़ेगा। तो उस तरह से आप मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। और तो डिस्प्ले ऐड, चूंकि इमेज अप्रोप्रिएट इमेज मेरे पास हैंडी नहीं था इसलिए मैं नहीं बना पाया आपके सामने। वीडियो ऐड आपके सामने आ गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी और साहब के पास है तो बता देना इसको। यहाँ पे अब शेयरिंग मैं फिर से यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग बताएं इसके अलावा और कोई। जी सर, बताएं। डिजिटल मार्केटिंग प्लानर ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग प्लानर का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से आप बैनर देख के एक एक पॉइंट शायद पॉइंट आउट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग प्लानर ये है कि भाई आपका कितना बजट है, और आप अपने बिजनेस के बारे में अगर पूरा डिटेल बताएंगे, और आप क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट आप एलोकेट करना चाहते हैं वो बताएंगे, तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी आपको वर्कआउट होगा। डिजिटल मार्केटिंग प्लानर इज बेसिकली प्लानिंग व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड अडॉप्ट फॉर योर बिजनेस टू बिकम सक्सेसफुल ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर आपने बजट कुछ एलोकेट किया है, माशाल्लाह 1 हफ्ते से आप सुन रहे हैं, 5 दिन से आप सुन रहे हैं, तो आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या बजट आप अपने बिजनेस के लिए एलोकेट करना चाहते हैं, कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। जी सर। नहीं यासीन साहब, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी, अभी तो जैसे लैपटॉप वगैरह कुछ तो है नहीं, सिस्टम सिर्फ मोबाइल है। सबसे पहले तो लैपटॉप हायर करना है, उसके बाद जो है फिर फेसबुक वगैरह पे कुछ ऐड कैंपेन वगैरह करनी है, ताकि वही सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है हमें अभी। और SEO को तो अभी वर्क तो करा नहीं उसमें, तो ज़्यादा नॉलेज उसकी तो नहीं है। नहीं, आपकी वेबसाइट होगी तभी तो आप SEO करेंगे।
आप सबसे पहले वेबसाइट पे, चाहे वेबसाइट का वो तो सबसे बड़ा मसला मेरे वेबसाइट समझ में नहीं आया कैसे बनाना है, क्या करना है वेबसाइट का। भाई अगर आपको वेबसाइट कैसे बनाना है, या तो आप खुद सीखें या किसी से बनवाइए, दो ही रास्ता है, उसका कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको घर बनाना आता है तो आप खुद से बना लीजिए, नहीं बनवाना आता तो मजदूर रखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। अगर आपको इलाज करना आता है तो अपना इलाज खुद कर लीजिए, नहीं करना आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वेबसाइट के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, इस वजह से तो ऐसे बन के वेबसाइट के बारे में मालूम भी होना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना कितने की बनेगी, तो वो सारी चीज़ें अब ऐसे किसी को भी पैसे दे के अगर बनवाएंगे पता वो कितने रुपए ले कैसी बना दे, बाद में दिक्कत हो। नहीं तो बिल्कुल, बेसिक चीज़ आप तो आनी चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल, बेसिक चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया है, उसी तरह से कहीं आप वेबसाइट का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या जी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। जी। Anyone else have any question? जी। Yes, Shakir, I have a question. Yeah. As a beginner, what you will suggest? What is my entry point? What should my entry point? लुक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसके अंदर जो मैं अगर आपको कहूँ कि जो मैं आपके प्रोफाइल और आपके प्रोफेशन को लेके अगर मैं देख रहा हूँ, तो आप दो चीज़ों को लेके इसके ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बीइंग एन एकेडमिशियन, आप एक एकेडमिशियन हैं और आपका अपना एक निश है, अपना आप इंडस्ट्री के अंदर, आपके एकेडमिक इंडस्ट्री के अंदर, आपके कॉलेजेस और आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हैं या फिर जिनको आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अलग अलग सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, वहाँ पे आपको लोग जानते हैं। तो आपके जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो आपके फाइल के अंदर ना रहें, वो पब्लिकली नुमायां हों। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि आपको कोई ना कोई एक छोटा सा ब्लॉग वेबसाइट आप बना लें। ब्लॉग वेबसाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, blogger.com या wordpress.com या wix.com या गूगल का एक साइट है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप wordpress.com करके एक नोट डाउन कर लें, उसको खोलें और वहां पे आप, अगर आपका नाम, repeat wordpress.com, wordpress.com, word WORD, word PRESS, wordpress। ठीक है, wordpress.com, इस वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे आपको आपका यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए कहेगा। जैसे आप फेसबुक पे अपना आईडी क्रिएट करती हैं और आपके पेज का नाम होगा facebook.com/बीबी इशरत या इशरत जहां या डॉक्टर बीबी इशरत जहां, जो भी होगा, तो उसी तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर जाके आप अपने नाम से एक लिंक क्रिएट कर सकती हैं। आप मान लें वो कहेगा कि ये नाम अवेलेबल नहीं है, सजेस्टेड नेम्स आर, तो सजेस्टेड नेम्स आर, यू हैव वेरिएशंस, इशरत जहां, बीबी इशरत जहां, डॉक्टर इशरत जहां, तो आप ये वेरिएशंस देख सकते हैं, DR इशरत जहां। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, आपका पेज बन जाएगा DR इशरत जहां .wordpress.com। ठीक है, अब वहां पे आप अपना बैनर डालिए, आप अपना फोटो डालिए, आप अपना CV डालिए, आप अपने रिसर्च के काम डालिए, आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है उसको वहां पे डालिए, और ये एज इजी एज वर्किंग ऑन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, वहां पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप उस पर कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है। अगर नहीं समझ में आए तो आप YouTube पे जाके सर्च करें, हाउ टू क्रिएट सिंपल वर्डप्रेस साइट। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए, और वहां पे कोई भी गलती हो रही है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Yes, I am a little less confident. That's why I am querying. नहीं। But if I start using, I think if I will start. You have to start using it. और मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ बीइंग ट्रोल्ड। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि ट्रोल हो जाएंगे तो हमारा कोई ब्रांड इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हम लर्नर हैं भाई, हम लर्नर हैं, हम लर्न कर रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर, इसी लॉकडाउन के अंदर वीडियोस बनाए, बहुत ही फनी कमेंट आया, यानी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि मैं एक्सपर्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है। लेकिन जो है वो आपके सामने मैंने दिखाया कि उसी से क्या परफॉर्मेंस निकल के आया। राइट, तो इस तरह से आप शुरू करिए, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है
तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी गाइड कर दूंगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। Okay. One more question. और वो as करने के बाद आप उन लिंक्स को अपने फेसबुक पे डालिए, ठीक है। आप इमेजेस पोस्ट कीजिए, आप अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, आप उसके इमेजेस पोस्ट कीजिए, आप अलग अलग सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप उसके इमेजेस पोस्ट कीजिए और फिर उसको फेसबुक पे शेयर करिए। आप देखती हैं कि जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे कि जैसे मैं अगर एक वीडियो बनाता हूँ, ये लेक्चर का भी वीडियो अगर बनाता हूँ तो उसको मैं जाके फेसबुक के ऊपर पोस्ट करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी है वो है। तो आप करना शुरू करिए। हाँ, आपका दूसरा क्वेश्चन। some of my students asking for their um, online or some classes. So I have no such skill, and that's why I'm unable to do. Because a few students want that I should guide them because of this lockdown, they are not preparing well. Okay. They want my help. So good part is, as you experienced it, I'm not very sure, आप Zoom पे पहली बार आप ये 5 दिन का जैसे आपने क्लास लिया है, सेशन लिया है, फर्स्ट टाइम आपके लिए है या पहले भी आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं? No. ठीक है, तो ये पहली बार, हाँ ठीक है, जो पहली बार है तो आपके लिए सबसे आसान सी चीज ये है कि आप Zoom के ऊपर, जैसे मैं तो अभी लिंक भेज दे रहा हूँ, आप ओपन करते हैं, Zoom ऐप है वहां से, तो आप Zoom के अंदर एक अपना आईडी क्रिएट कर लीजिए और इसी तरह से ऑर्गेनाइज मीटिंग करके एक ऑप्शन आता है, ये फ्री है। ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग करके एक ऑप्शन आता है, आपने एक लिंक क्रिएट किया, जैसे मैं लिंक आप लोगों को शेयर करता हूं, आप वो लिंक अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए, वो उसको क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग लॉगिन हो गए वैसे वो लोग भी लॉगिन हो जाएंगे, आप अपने मोबाइल से बैठ के उनसे डिस्कस कीजिए। Yes, okay. आप सिर्फ, आपको करना इतना है कि Zoom पे जाके, आपके पास लैपटॉप होगा ही, आप लैपटॉप पे जाएं और लैपटॉप पे जाके आप Zoom पे जाके अपना आईडी क्रिएट कर लें। और Zoom पे आईडी क्रिएट करने के लिए कोई नया आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है साइन इन फ्रॉम योर गूगल अकाउंट। तो दूसरा ऑप्शन आता है, जब zoom.com पे जाएंगे और क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन आता है साइन इन फ्रॉम गूगल अकाउंट, आप उसको क्लिक करें तो आपके जीमेल का ही यूजर नेम पासवर्ड लेके वो क्रिएट कर देता है और वहां पे क्रिएट जूम मीटिंग करके एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट मीटिंग। जैसे ही आप क्रिएट मीटिंग करेंगे तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालना है और एक लिंक दे देता है। उसके अंदर ये भी पूछता है कि आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, क्या आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, आप सब में नो 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 डाल दीजिए। आप सिर्फ लिंक ले लीजिए, नो पासवर्ड वाला लिंक ले लीजिए और आप इसको क्रिएट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं, जब भी आप लैपटॉप पे हैं और मैं अवेलेबल हूं उस टाइम पे, तो मैं आपके डेस्कटॉप को माई डेस्क से शेयर कर लूंगा और फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप Zoom के ऊपर क्रिएट कर सकती हैं और कैसे आप क्लास ले सकती हैं। Okay, thank you very much. ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? तनवीर भाई हैं और अदनान भाई हैं, और भी किन्हीं का कोई सवाल हो तो ठीक है, अदरवाइज we will close for the day and session will go for an end. This digital marketing discussion for 5 days will go for an end today. Anyone else? Mr. Adnan? Yes, sir, it was very useful. It was very informative, and it is very useful for us to take our business to next level. And as soon as possible, I will try to come and meet you, sir. Sure. It will be my pleasure. Thank you. Right. Thank you. Thank you. So I'm just making a pause of it. I request all of you guys, there are 2-3 questions. I'm not very sure. No device as of now. We'll start once I get one. Thankful for wonderful session. Tanveer has put it. So guys, in case you can put me a comment on my YouTube channel, that will be great help for me. Right. And Adnan has asked, which is the best social media platform to attract more business? To answer Mr. Adnan question, which is the best social media platform? So yesterday when we were discussing about mail marketing or even for the Facebook ad, so I was discussing about matrimony site, and I was also discussing about business executive MBA programs, right? So for one of a platform for matrimony, Facebook performed better. For executive MBA program, LinkedIn performed better. So based on the kind of business that you are into,
unless until I don't have idea about in detail about your business, I may not be able to guide you what will be the best platform. Sometimes Facebook and LinkedIn will not be best platform for you. Instagram will be good, and TikTok is very handy these days. Youngsters and youth, they are making a lot of funny videos, and they are getting a lot of thousands and thousands of reaction on that. So what will work for you, unless until I don't understand your business, I will not be able to comment on that. But certainly for various lead generation process, LinkedIn works out. At the same time, Google also works out, and Facebook also works out. So Google is search engine, but Facebook and LinkedIn, these two places, you can generate leads, very interesting leads and very genuine leads, the way that I have shown you on the link on a Facebook. So that is kind of thing. So if you don't have a device, you have to opt for the device. And this is what I feel, this is a bottleneck. When we are saying that since we don't have a device, so once we have the device, or once we will hire a laptop, then only we will be able to do. I think this is a pure bottleneck, because most of these platforms are mobile friendly interface. So if you don't have laptop, don't worry at all. You start using things on mobile. All these Facebook ad creation, it is available on mobile. For Google ad creation, you download Google Ad mobile app, and you can do complete thing on your mobile. If you want to create free website on WordPress, you can do that on mobile. If you want to create free website on Wix, wix.com, you can do that. So it's a bottleneck only. You want to shoot a video. I was not having a professional video. I took my mobile and I cannot hold it for long. So what I did, I had a stand. I put that, I inserted rubber band on this, and then posted it on that, and I shooted my video. I cannot ask my daughter to stand for 15 minutes, 20 minutes or 1 hour. I just shooted it like that. I'll show you how I did it. It's very handy. This is one of my memento. I got, this is one of my memento, which is quite old one. So it was not being used. So what I did, I put my mobile like this. I put my mobile like this, and it started front facing, and I started shooting it, right? So that is how I did it. So I feel that it's applicable for one and all. So we can do. So only thing is, like, once you start, and believe me, most of the youngsters who are making so many videos create from mobile. They, I'm like, you will be surprised. There are a lot of tools which are available, small apps which are available. You shoot a video, you can give your own kind of background. You shoot an image, and then you can create a collage using few tips. I'm like, it is available, right? So you start practicing it, what gadget and what asset that you have, right? Say lockdown is there, but it doesn't mean that world has stopped their business. They are doing their business in a new way. So you have to find out what can be done in this limited resources what you have, and you try it. There, I'm like, if you are not able to do it, you go to YouTube. You have such a wonderful platform called YouTube. How to create and edit video using my Android mobile. How to create a simple web page or blog using my Android mobile. You'll get all these things. So you start using it, and hope. My point is, like, somehow I'm not in favor of talking about the constraints. Whatever the best possible thing we have, we can just start using it. So thank you very much to all of you. उम्मीद करता हूं कि ये 5 दिन का सेशन, जो कि 5 अलग-अलग वीडियोस के फॉर्मेट में आप तक पहुंचा होगा। आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके बाद नए वीडियोस इस पे आते रहेंगे अलग-अलग टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप पहुंचते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, तो शायद आपको पता चलता रहेगा। And then I request, in case it is possible, that you can shoot a small video testimonial of yourself and share that to me. That will be great asset for me. I think that will be only the asset, digital asset, because today is the world of digital, and whoever have digital economy, they will be only the succeeder in this particular lockdown period. अगर ये डिजिटल ही एक करेंसी है जो कि इस लॉकडाउन के अंदर काम कर रहा है, आप पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं, आप ग्रोसरी डिजिटल सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्लासेस और इंटरेक्शन डिजिटल कर रहे हैं,
डॉक्टर इशरत वांट टू अटेंड हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के क्वेरीज को अटेंड करना चाह रही हैं, डिजिटली करना चाह रही हैं. डॉक्टर मुरली वांट्स टू एड्रेस देयर पेशेंट digitally, and so it's all about how well we monetize the available platform, right? So guys, thank you very much. और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी पेशेंटली इस 5 दिन के सेशन को सुना है. फिर भी अगर कोई क्वेरी होता है तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं. रीजनेबली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊं और आपको सपोर्ट कर पाऊं. एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें. और जैसे जैसे रिलैक्सेशन हो रहा है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दैट वी हैव टू एक्सेप्ट Corona is a part of our life and we have to live with that. So we have to take precautionary measure. और वो बिजनेस के अंदर भी है, वो पर्सनल के अंदर भी है, प्रोफेशनल के अंदर भी है, हर एतबार से है. So thank you very much. Take care और अपना और अपनों का ख्याल रखें. बहुत बहुत शुक्रिया.